आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 11 आपका क्लास 8 डीएवी के बुक का है। सो इसमें जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा। और चैप्टर आप लोग देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सबको डिस्कस किया जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश यानी द इरिस ऑफ द ह्यूमन आई डिटरमाइंस द कलर ऑफ पर्सन आई। सेकेंड, द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑफ द ह्यूमन आई इज कॉल्ड रेटिना। थर्ड, द कोन शेप्ड सेल ऑन द रेटिना रिस्पॉन्ड टू द ब्राइट लाइट। फोर्थ, द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच आई बॉल बिकम स्मॉलर देन इट्स normal size is called hypermetropia. Fifth, a concave lens is used to correct myopia and convex lens is used to correct hypermetropia. Okay, ये आपका हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आपका है इरिस इज द मस्कुलर असेंबली दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पुपिल। सही है। The eye lens forms a virtual, erect and diminished image of an object on the retina. False. The retina of the human eye has a large number of cone-shaped and rod-shaped cells. The rod can respond even in dim light. True. Cinematography make use of the persistence of vision of human eye. True. For a normal human eye, the range of vision is from nearly 25 centimeter to infinity. True. Myopia is caused due to excessive curvature of the cornea. True. Now next, take the correct option. The change in focal length of an eye lens to focus the image of object at varying distance is brought about the action of ciliary muscles. Second, the impression of image formed on the retina of human eye remains there for about 1/16th of second. Okay, the human eye can focus object at different distance by adjusting the focal length of eye lens. This ability of eye is known as power of accommodation. Okay, now next, a nearsighted person will face difficulty while reading a street signboard across the street. Fifth, the defect of human eye in which the eye lens of person get progressively cloudy results in blurred vision is called cataract. And sixth, the braille system for visually challenged person is a tactual aid. You know very well. Now आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। आपका डी का क्वेश्चन आंसर यहां शुरू होता है। नेम द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई विच एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द आई, दैट इज कॉर्निया। द करेक्ट आंसर इज कॉर्निया। सेकेंड, द पुपिल अपीयर्स ब्लैक। व्हाई? इट अपीयर्स ब्लैक एज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। ओके, नाउ क्वेश्चन 3, डिफरेंशिएट बिटवीन रॉड शेप्ड सेल एंड कोन शेप्ड सेल। ये दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। द रॉड शेप्ड सेल गेट एक्टिवेटेड इन डीम लाइट कंडीशन एंड द कोन शेप्ड सेल गेट एक्टिवेटेड ओनली इन ब्राइट लाइट कंडीशन। ठीक है। सेकेंड कंडीशन में देखिए, दीज सेल डू नॉट हेल्प इन कलर विजन एंड दीज सेल्स हेल्प अस इन कलर विजन। ओके, नाउ नेक्स्ट, नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। इसमें आपका हो जाएगा इट इज 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई एंड इट इज इंफिनिटी फॉर नॉर्मल आई। इसमें आपका हो जाएगा द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन। और इसमें आपका होगा इट इज द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। यही आपका दोनों का डिफरेंस हो गया। क्वेश्चन 4, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ओके, इसमें आपका हो जाएगा मायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटनेस एंड हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड
long sightedness. In this, the object near appears clear, but objects far appears blur. Okay. In this, the object near appears blurry, yani blur, but objects far appear clear. Myopia, a concave lens is commonly used in rectifying the eyes, and a double convex lens is commonly used in rectifying the eyes. यहां आपका हो जाएगा myopia में the image of the object is processed in front of the retina, और इसमें आपका हो जाएगा behind of the retina, यानी the image of object is processed behind the retina. Now state the difference between tactual aids and auditory aids. Tactual aids work on the touch receptor, that is skin, and auditory aids rely only our ability to hear. Tactual aids, Braille system is an example of tactual aids, and audio cassette is an example of auditory aid. Okay. Now next, define the term blind spot on the retina. No image get formed at this point. It is insensitive to light. This point is called blind spot of the eye. This is the spot where the optic nerve meet the retina. Okay. And persistence of vision of human eyes, the ability of an eye to continue to see the image of an object for a very short duration after the object has disappeared from view is called persistence of vision. Okay. Now question number 6, give the meaning of the term, that is power of accommodation of human eye. The ability of an eye to focus on distant object and nearby object as well on the retina by changing the focal length of the eye lens is termed as power accommodation या power of accommodation. Clear? Now next, least distance of distinct vision. The minimum distance at which object can be seen most distinctly and without strain is called least distance of distinct vision or near point of the eye. Now next, range of vision. The distance between the near point and far point of normal eye is called its range of vision. And question 7, what happens to the image distance in the eye when the distance of the object from the eye increase? क्या होगा जब इमेज के डिस्टेंस जो है आपका इमेज जो आंख का डिस्टेंस से अगर उससे बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? When the distance of the object from the eye increase, the image distance in the eye will always be same. ये इसलिए होता है, in every case image is formed on the retina due to power of accommodation. ये आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन के कारण होता है. Question 8, when Sahil tried to read a book by keeping it at a distance of 25 centimeter, the text print appeared to be blurred. यानी साहिल जो है एक बुक को पढ़ना चाहता है, आपका उसका डिस्टेंस जो है 25 सेंटीमीटर का है, उसके बावजूद भी उसका बुक जो है ब्लर दिखाई दे रहा है. तो क्या कारण हो सकता है? Is the image of text getting formed before the retina or beyond the retina of his eye? तो आपका हो जाएगा beyond the retina. Okay. What conclusion can be drawn about the least distance distinct vision of the Sahil eye? The least distance of distinct vision of Sahil eye has increased
as he is suffering from hypermetropia. Okay. Now question 9. A person with a myopic eye cannot be seen object beyond 1.2 meter distinctly. What can be said about the likely size of eyeball? State the nature of corrective lens that is needed to restore his proper vision. The answer is his eyeball has become elongated. He needs to use a concave lens to correct his vision defect. देखिए यहाँ पे कनकेव लेंस हो रहा है, आपको यहाँ देखना है कि आपका मायोपिक आई है, यानी कि मायोपिया से वो ग्रसित है, तो इसके अकॉर्डिंग जहां मायोपिक आएगा वहां पे कनकेव लेंस का यूज होगा. नाउ नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ड्रॉ लेवल स्केच ऑफ ह्यूमन आई. एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई. कॉर्निया, इरिस, पुपिल, आई लेंस, सिलियरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व. तो जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका ये इमेज हो गया, और जो आपका यहाँ मार्क करना है उसके अकॉर्डिंग आपका इमेज में मार्क किया हुआ है. नाउ नेक्स्ट, अब आपको इसका फंक्शन लिखना है. कॉर्निया, इट्स मेन फंक्शन इज टू एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द आई. Iris, the iris is responsible for characteristics of color of the person या of a person. Pupil is the self-adjustable apparatus which regulate the amount of light entering the eye by adjusting its size. And last one is eye lens. The eye lens is a convex lens which focus the rays of light on retina. यानी ये आपका eye lens का पर्पस है, फंक्शन है. नेक्स्ट में और आगे बढ़ते हैं. सिलियरी मसल्स. दीज मसल्स हेल्प इन चेंजिंग द कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस. सिक्स्थ, रेटिना. इट इज लाइट सेंसिटिव स्क्रीन वेयर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड. एंड जी, ऑप्टिक नर्व कैरीज सिग्नल फ्रॉम द आई टू द ब्रेन. ओके, तो ये आपका कुछ फंक्शंस था जो इमेज में आपको बताया गया है कि जो आपका ये दिया हुआ है, यानी आपका आई का जो पार्ट्स दिया हुआ है उसके फंक्शंस को भी यहाँ डिनोट करना था. अब क्वेश्चन 2 हो गया. एक्सप्लेन हाउ वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर. आपका आंसर हो जाएगा लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर अवर आईज एंड पास थ्रू द लेंस. द लेंस फोकस दिस रे ऑन द रेटिना. An inverted real and a smaller image is formed on the retina. This stimulates photoreceptor in the eye. The optic nerve picks signal from the eye and send it to the brain. The brain interprets the signal and we are able to see an object. तो होता क्या है, जैसे ही लाइट हमारे आंख में प्रवेश करता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका लेंस जो है वो आपको लाइट को अंदर ले जाएगा, यानी कि रेटिना पे उसका इफेक्ट को डालेगा. ठीक है, और रेटिना पे जैसे इफेक्ट पड़ेगा लाइट का तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो फोटो रिसेप्टर होता है वो एक्टिव होगा, और एक्टिव होने के बाद वो ब्रेन को सिग्नल देगा, और ब्रेन उसके अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज करेगा कि विच ऑब्जेक्ट वी आर लुकिंग, हम लोग कौन से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं. नाउ स्टेट एनी 5 प्रिकॉशन दैट आर नीडेड टू टेक केयर ऑफ आवर आईज. कोई 5 प्रिकॉशन लिखना है कि आप अपने आंख का कैसे देखभाल करेंगे. द 5 प्रिकॉशन टू टेक केयर ऑफ आवर आईज. डू नॉट रीड इन डीम लाइट और टू ब्राइट लाइट. डू नॉट कीप योर बुक टू क्लोज टू योर आईज. Don't look directly at the sun. Wash your eye gently with clean water and take balanced diet. आंख के लिए आपका सही खान पान बहुत जरूरी है. Question 4. Explain how optical and non-optical aid help visually challenged person to develop their skills
टू अ हायर लेवल। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्टिकल एड्स कैन हेल्प अ पार्शियली विजुअली impaired person. Optical ad can enhance the image or text so that person can see them with some clarity. Non-optical ad rely on other sense organ like skin or ears. Tactile ads like braille rely on the sense of touch. Auditory ad like audio cassette rely on sense of hearing. These ads can help a visually impaired person to learn how to read, how to communicate effectively. इसमें आपका यही दिया हुआ है कैसे ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल एड जो है विजुअली चैलेंज पर्सन को उसके स्किल को डेवलप करने में मदद करता है। तो आपको बताया गया है कि जब ऑप्टिकल या नॉन ऑप्टिकल एड्स हम लोग यूज करते हैं तो उस कंडीशन में इमेज या टेक्स्ट को इनहेंस करता है। जो ऑडिटरी हम लोग ये एड्स का यूज करेंगे तो उस कंडीशन में जो कम सुनाई देता है वो अपने आवाज को क्लियर रूप से और जो उसका नॉर्मल सुनने का शक्ति है उसके ऊपर वो सुन सकता है। ठीक है, तो आपका जो ऑडिटरी एड्स हो गया या आपका ऑप्टिकल्स एड हो गया, ये सब जो है हर कंडीशन में आपका विजुअली चैलेंज पर्सन को आगे आपका स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। Question 5. What is Braille system and how does it help the visually challenged person? This is a system of raised dot on paper by which a visually impaired person can read or write. Okay, there are 63 characters in the Braille system. It proved to be a boon for the visually challenged because book could be made in this system. यानी ब्रेल सिस्टम के माध्यम से जो बच्चे या जो ऐसे पर्सन जो देख नहीं सकते हैं वो ब्रेल सिस्टम के माध्यम से उस लिपि को ब्रेल को यानी टेक्स्ट को फील करके जान सकते हैं कि आखिर बुक में या जो पेपर है उस पे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गया। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ कुछ क्वेश्चन हो गया। The class teacher show a concern for mental well-being for her student. सेकेंड में आपका हो जाएगा name the defect of vision caused by formation of optic layer over the eye. हम जानते हैं कैटरेक्ट होता है वो। और क्वेश्चन 3 आपका खुद से करना है। ये आपका कुछ अक्रॉस और डाउन एक तरह का पजल हो गया जिसमें आपको ये जो आपका कीवर्ड्स है इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ फार साइटनेस हो गया, एन ओपनिंग थ्रो विच लाइट इंटर द आई हो गया। तो जो आपका कीवर्ड्स हो गया इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज में फिल करना जो आपको फिल किया गया है। हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ब्रेल हो गया, यहाँ पे सेकेंड नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे मायोपिया हो गया, थर्ड नंबर में देखिए यहाँ पे रेटिना हो जाएगा, फोर्थ नंबर आपको ब्रेल हो जाएगा, फिफ्थ नंबर देखिए यहाँ कौन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा ये सारा आपको अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स जो है वो भरा हुआ है। तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ से देखकर भर सकते हैं।